مردود کی شرارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات سے میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک یسألونک، صحابہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، نئے چاند کے متعلق، یا دوسرا اس کا میننگ کر سکتے ہیں چاند کے بڑھنے گھٹنے کے متعلق۔ صحابہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بڑھنے گھٹنے کے متعلق، کل آپ جواب دیجئے، ہی مواقیت، وہ اوقات ہیں، وہ وقت معلوم کرنے کی علامات ہیں، للناسی، لوگوں کے لیے، والحجی، اور حج کے لیے، ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی، بان تأتوا البیوت، یہ کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا، گھروں کی پشتوں سے، ولیکن البر، اور لیکن نیکی پر ہے، من، وہ شخص جو اتقا، پرہیزگار ہے، وأتوا البیوت، اور تم آؤ گھروں میں، من بیوتہا، گھروں کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وقاتلوا، اور تم قتال کرو مسلمانوں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، الذین، صرف ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، قتال کرتے ہیں تمہارے ساتھ، ولا تعتدوا، اور مت تم زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب المعتدین، نہیں پسند فرماتا زیادتی کرنے والوں کو، وقتلوہم، اور تم لڑائی کرو مشرکوں سے، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم نکالو ان کو، مشرکوں کو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے نکالا انہوں نے تمہیں، والفتنۃ، اور بے دینی، اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل کے مقابلے میں، ولا تقاتلوہم، اور نہ تم لڑائی کرو مشرکوں سے، کافروں سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ لڑائی کریں تمہارے ساتھ، فیہی، مسجد حرام میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ لڑائی کریں تمہارے ساتھ، فَقْتُلُوهُمْ، پھر تم بھی لڑائی کرو ان کے ساتھ، كَذَلِكَ، اسی طرح، جزاء الکافرین، سزا ہے کافروں کی، فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں شرک سے، بے دینی سے، فَإِنَّ اللَّهَ، پھر بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں، وقاتلوہم، اور تم جہاد کرو، لڑائی کرو مشرکوں کے ساتھ، حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے، فتنۃ، بے دینی، ویکون الدین، اور تاکہ ہو جائے عبادت، للہ، اللہ تعالی کی، فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں شرک سے، فلا عدوانہ، پھر نہیں کوئی زیادتی، الا علی الظالمین، سوائے مشرکوں کے، مگر مشرکوں کے ساتھ، الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرامی، حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا برابر بدلہ ہے، حرمتوں کا برابری پر بدلہ ہے، فمن، پھر جو شخص اعتدا، زیادتی کرے، علیکم، تم پر، فاعتدوا، پھر تم بھی زیادتی کرو، علیہ، اس کے ساتھ، بمثلی، اتنی، ما، جتنی، اعتدا، زیادتی کی اس نے، علیکم، تم پر، واتقوا اللہ، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے ان معاملات میں، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، یقین کر لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ تم ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھ، اے مسلمانوں، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور تم نیکی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب المحسنین، پسند فرماتا ہے نیکی کرنے والوں کو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم مکمل کرو حج اور عمرہ اللہ تعالی کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ عمرہ کرنے سے، فَمَا اسْتَيْسَرَ، پھر جو آسان ہو، من الحج، قربانی کا جانور، ولا تحلقوا رؤوسکم، اور مت تم منڈوا دو اپنے سروں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ الحدی، پہنچ جائے قربانی، محلہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ پر، یعنی مینا میں، فمن، پھر جو شخص کانا ہے، منکم، تم میں سے، مریضاً، بیمار، او بھی اذن، یا اس کو تکلیف ہے، من رأسہ، اس کے سر میں، ففدیۃ، پھر فدیہ ہے،
सरना मुंडवाने का, मिन सियामिन रोजे रखना, और सदकातिन या सदका करना, और नुसुकिन या कुर्बानी। फ़इज़ा अमिन तुम, फिर जब तुम अमन में हो, फमन फिर जो शख्स तमत्ता हज तमत्तो करे, बिल उम्रती तमत्ता इलल हज्जी, हज तमत्तो करे, या इसका दूसरी मीनिंग हो सकता है कि फायदा उठाए, बिल उम्रती उम्रा के साथ, इलल हज्जी हज का, फमस्तैसरा फिर जो मुयस्सर हो, मिनल हज्जी कुर्बानी का जानवर। फमल्लम यजिद फिर जो शख्स ना पाए कुर्बानी की ताकत, फसियाम सलासती अय्यामिन फिर रोजे रखे 3 दिन, फिल हज्जी हज के दिनों में, वसबातिन और 7 रोजे, इदा रजा तुम जब तुम लौटो घरों में, तिल का अशरतुन कामिला ये 10 रोजे मुकम्मल हुए, ज़ालिका ये लिमन उस शख्स के लिए है जो ये हज तमत्तो की इजाजत उस शख्स को है जो लम यकुन अहलुहु हाजिरिल मस्जिदिल हराम, नहीं है वो रहने वाला मस्जिद हराम के पास। वत्तकुल्लाह और तुम डरते रहो अल्लाह ताला से, वालमू और तुम यकीन कर लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। सदकल्लाहुल अज़ीम, सदकल्लाह। पीछे हमने शुरू किया था, आयत हमने पढ़ी थी कि साबिरीन जो हैं उनके साथ अल्लाह ताला हैं, वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बअस। उसी की डिटेल अब यहाँ पे चल रही है अभी तक। उससे पहले कत्ले अमद यानी जानबूझकर कत्ल करने का तज़किरा आया कि अगर कोई जानबूझकर कत्ल कर दे तो उसमें तैश में ना आ जाएं और उसके सारी फैमिली को कत्ल करना ना शुरू कर दें, बल्कि सब्र से काम लें और कातिल से बदला लें और उसमें हुकूमत वक्त का जो की मदद लें। खुद बहुत जो है ना जज ना बन जाए, खुद बहुत जल्लाद ना बन जाए। उसके बाद तरके का यानी विरासत का सिलसिला था। विरासत के अंदर जो है कोई फोत हो जाता है तो उसमें भी एक दूसरे की हक तलफी ना करें, यानी बिलबअसाई वज़्ज़र्राई जो है उसमें माली तंगी भी है और जानी तंगी भी है। माली तंगी में तरका आ जाता है, विरासत आ जाती है कि विरासत में हर किसी का दिल होता है कि मुझे मिल जाए और मैं ज्यादा ले लूं ताकि मेरी माली तंगी जो है वो खत्म हो जाए। और जिस्मानी तकलीफ जो होती है उसमें कत्ल आ जाता है कि कत्ल अगर कोई कर देता है तो जाहिर है कि जिस्मानी तकलीफ होती है, तो उसमें भी आपे से बाहर ना हो। उसके बाद हराम माल खाने और रिश्वत देने के बारे में था, जो आया था कि लोगों के माल आपस में बातिल तरीका से जो है हुक्काम के पास ना पहुंचाओ, यानी जज के पास कोई केस बना के किसी के ऊपर किसी की जमीन जायदाद का बना के ले गए कि ये जमीन जो है ये मेरी है, दावा गलत कर दिया और उसके अंदर से कुछ जज को खिला दिया रिश्वत के तौर पे, और कुछ रिश्वत देने की वजह से आपके हक में फैसला हो गया, तो वो माल जो है वो हराम माल आपके हक में जज ने भी लिख दिया। तो ये तरीके ना अपनाओ, बल्कि अल्लाह ताला की हदों को पार करने से बचो। अब हज, उसके बाद हज का तज़किरा आया है कि हज का भी तज़किरा पीछे हमने पढ़ लिया कि हज जो है वो एक माल के लिहाज से भी और मेहनत के लिहाज से भी बहुत सख्त इबादत है, यानी उसमें माल भी बहुत ज्यादा लगता है और मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है। जिस्मानी तौर पे इंसान थक टूट जाता है हज करने वाला। अक्सर ऐसा होता है कि हाजी जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं हज करने के बाद। ये ऐसी इबादत है। और आज का हज जो है वो कितना आसान हो चुका है पहले वक्तों के हज के मुकाबले में। पहले वक्तों में जिन्होंने हज करना होता था वो 6 महीने पहले जो है हज के लिए निकलते थे और अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लेकर निकलते थे और सारी जिंदगी जो है पैसा जमा करते रहते थे कि हमने हज करना है। तो आज जो है हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर हज हो जाता है। और आज फाइनेंस का भी इतना मसला नहीं रहा जिस तरह पहले होता था। पहले बहुत ज्यादा जो है मेहनतों के बाद कुछ थोड़ा बहुत पैसा लोगों के पास इकट्ठा होता था जो वो हज पे लगा देते थे। तो इस बारे में सहाबा का सवाल ये था कि अरब का मुल्क जो है ये बेआबो गया है, यानी गर्म इलाका है, रेतला इलाका है और मईशत जो है हमारी सिर्फ सफरों पर चलती है। तो गर्मियों में हम मुल्क शाम जाते हैं, सर्दियों में यमन और ज़रूरत की चीज़ें लेकर आते हैं। तो यहाँ के जो इलाके हैं ये बहुत गर्म हैं। सुबह शाम चलते फिरते हमारी जो है वो वक्त गुजरता है। तो इस तरह रात जो है रात को भी
हमें पता नहीं चलता कि अब कितने दिन गुजर चुके हैं, कितनी रातें गुजर चुकी हैं। बल्कि यहाँ पे ये सवाल नहीं, बल्कि उनका ये सवाल था कि रात को भी हम सफर करते हैं और दिन को भी सफर करते हैं, तो दिन को तो सूरज की रोशनी में हम सफर कर लेते हैं, लेकिन रात को क्या होता है कि चांद बढ़ता घटता रहता है, तो हम सही से सफर नहीं कर सकते, अंधेरे की वजह से हमें अपना सफर रोकना पड़ता है। तो हम क्या करें, मतलब काश के चांद भी पूरा रहता और हमेशा 14वीं के चांद की तरह मुकम्मल रहता है, या जैसे सूरज पूरा रहता है हर वक्त उस तरह रहता, तो हम जो है सफर अच्छे तरीके से कर सकते। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब ये दिया कि चांद की जो बढ़ने घटने का जो मकसद है उसकी दो वजूहात हैं। एक ये है कि ये लोगों को वक्त मालूम करने की एक का जरिया है, वक्त मालूम करने का जरिया है। और दूसरा ये है कि हज के औकात भी इससे मालूम होते हैं। यानी चांद के जरिए कैलेंडर बनाना जो है आसान है। सूरज के जरिए भी वैसे जो हमारा अंग्रेजी जो महीने जिनको कहा जाता है, ये शमसी महीने हैं, इनका सूरज के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है। सूरज की गर्मी सर्दी के हिसाब से जनवरी फरवरी मार्च ये महीने आते हैं। लेकिन उनका अंदाजा लगाना, इन अंग्रेजी महीनों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। और जो कमरी महीने हैं उनका अंदाजा कोई जाहिल से जाहिल भी लगा सकता है, क्योंकि जब चांद पूरा होगा तो सबको पता होगा कि 14वीं रात है। और जब चांद कम होगा और घटता जाएगा तो सबको पता होगा कि आखिरी तारीखें चल रही हैं। जब चांद बढ़ता जा रहा होगा तो पता चलेगा कि पहली तारीखें चल रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं चांद से हम इन सारी तारीखों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये वजह अल्लाह ताला ने बताई। जब सहाबा ने सवाल किया कि रात को चांद पूरा क्यों नहीं रहता हमेशा, तो अल्लाह ताला ने बताया कि लोगों के लिए वक्त मालूम करने की अलामात हैं, और हज जो है हज के औकात मालूम करने की भी का भी एक जरिया है ये। अगली आयत है वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा। काफिरों के अंदर, कुफारे मक्का के अंदर एक ये चीज थी कि जब वो हज करके आते थे और उम्रा करके आते थे, तो वो समझते थे कि हमने अपने जो घरों के जो मेन डोर हैं उनसे दाखिल नहीं होना, क्योंकि मेन डोर से गुनाहगार बंदा, हम गुनाहों की हालत में दाखिल होते रहते हैं। तो अब हम हज करने के बाद गुनाहों से पाक हो गए, तो हम घरों की बैक साइड से छलांगे लगा के अंदर आएंगे, या उन्होंने मुख्तलिफ दरवाजे रखे होते थे बैक साइड पे भी, मखसूस होते थे इन इसलिए कि हज से जब वापस लौटें तो हम घरों की बैक साइड से लौटें। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि घरों को के अंदर उनके सीधे दरवाजों से ही, मेन डोर से ही दाखिल हो, क्योंकि ये नेकी नहीं है कि तुम हज करने के बाद पिछले दरवाजों से दाखिल होते हो, बल्कि नेकी पर तो वो शख्स है जो अल्लाह ताला से डरता है और हर काम अल्लाह ताला से डर डर के करता है। वअतुल बुयूता मिन अबवाबिहा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। और घरों में उनके सीधे दरवाजों से ही आओ और अल्लाह से डरते रहो हर मामले में, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। हज की सॉरी जिहाद की भी इजाजत नहीं मिली हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने दिफा के लिए जंग करने की इजाजत दे दी, सिर्फ इतनी कि अगर तुम्हारे ऊपर मुशरिकीन हमला करें तो तुम उनके लिए उनसे अपना दिफा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें इजाजत नहीं है लड़ने की, कोई तुम्हें कत्ल करने आए तो तुम अपनी गर्दन आगे कर दो, ऐसा नहीं है। बल्कि तुम दिफा के लिए, डिफेंस के लिए अपना जो है दुश्मन के साथ मुकाबला कर सकते हो। अब यहाँ पे जिहाद की कैसे बात शुरू हुई, वो इस तरह कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ। मदीना में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि मैं उम्रे के लिए रवाना हो रहा हूँ। और ये 6 हिजरी का वाक़या है। नबी का जो ख्वाब होता है वो भी वही होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही समझा कि ये वही है अल्लाह ताला की तरफ से, तो मुझे उम्रा करने के लिए जाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 12,000 सहाबा को अपने साथ लिया। सॉरी सॉरी गलत मैंने बता दिया, 1500 सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ लिया। और जुल हलीफा से एहराम बांध कर अपनी कुर्बानियां साथ लेकर
मक्का के लिए रवाना हो गए। जब मक्का वालों को खबर हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को साथ लेकर उम्रा के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने आपस में ये तय कर लिया कि हम मुसलमानों को किसी सूरत भी मक्का में नहीं दाखिल होने देंगे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि सहाबा के साथ नबी अलैहिस्सलाम जो है वो हुदैबिया के मकाम पर रुक गए, और काफिरों के साथ जो है बातचीत शुरू हो गई कि इधर से एक पैगाम्बर उधर जाता, एक पैगाम लेके बंदा उनकी तरफ जाता, उधर से कोई इधर आता, तो ताकि बात कोई तय हो जाए, हम किसी बात पे पहुंच जाए। तो आखिर ये डिसाइड हुआ कि मुसलमान इस साल जो है उम्रा नहीं करेंगे, इस साल उम्रा किए बगैर चले जाएं, और अगले साल आए तो अपने साथ हथियार लेकर ना आए, बल्कि सिर्फ तलवारें लाएं, और तलवारें भी जो हैं इनके बैग्स के अंदर होनी चाहिए, थैलों के अंदर होनी चाहिए। और मक्का में एक और शर्त उन्होंने ये रखी कि मक्का में सिर्फ 3 दिन ठहरे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली, और अपनी कुर्बानियां जो थी वो हुदैबिया के मकाम पे ही ज़बह कर दी, जानवर ज़बह कर दिए, इहराम खोल दिए और वापस लौट आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे, सहाबा भी परेशान थे। जाहिर है कि खाना काबा की, बैतुल्लाह की जियारत करना जो है वो एक तड़प थी आपके अंदर। तो रास्ते में ही थे कि अल्लाह ताला ने सूरत फतह नाजिल फरमाकर खुशखबरी दी कि आप अनकरीब मक्का को फतह कर लेंगे और अमन के साथ इसमें दाखिल होंगे, और फिर आप हज और उम्रा किया करेंगे। यहाँ पे अब जिहाद का जो तज़किरा हो रहा है वो इस तरह से है कि फिर अगले साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उम्रा करने के लिए, तो आपने अल्लाह ताला ने पहले से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहतियातन हथियार साथ ले जाने का हुक्म दे दिया। ये वही के जरिए नहीं था, बल्कि इन आयात से जो है ये वजाहत होती थी कि हो सकता है कि मुशरिक अपना वादा तोड़ दें और तुम्हारे ऊपर हमला कर दें, इसलिए तुम्हारे पास हथियार होने चाहिए। यानी वाज़े अल्फाज में नहीं था कि हथियार लेकर जाओ, अल्लाह ताला ने इशारतन बता दिया कि हो सकता है वो तुम्हारे साथ वादा खिलाफी करें और तुम्हारे ऊपर हमला कर दें। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे हथियारों के साथ जो है आप लश्कर को लेकर गए, और आपने 200 सहाबा को वो हथियार देकर रास्ते में ही एक जगह पे जो है रोक दिया, और खुद जो है सहाबा जो मक्का में दाखिल हुए उन्होंने अपने साथ तलवारें रखी और मक्का में दाखिल हो गए। लेकिन वहां पे हस्बे वादा जो है 3 दिन रुके, जंग का कोई सामना ना हुआ, मुशरिकों ने अपना वादा नहीं तोड़ा, तो इसलिए उन हथियारों की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस आयत में अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि अगर कातिलू फी सबिलिल्लाहि लदीना युकातिलूनकुम वला तातदू, काफिरों के साथ जंग करो लेकिन ज्यादती ना करो। अगर वो तुम्हारे साथ लड़े तो तुम भी उनके साथ लड़ो, क्योंकि अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और उनको कत्ल करो जहां भी तुम उनको पाओ। ये नहीं कि अब हरम के अंदर तुम्हारे साथ वो तुम्हारे ऊपर हमला आवर हो तो तुम ये कहो कि हरम जो है इसके अंदर जंग करना हराम है तो तुम रुक जाओ, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर हरम में भी मुशरिक तुम्हारे ऊपर हमला आवर होता है, दुश्मन तुम पे हमला करता है, तो तुम अपना डिफेंस कर सकते हो, डिफेंस के लिए उसके साथ लड़ाई कर सकते हो। व अखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, और तुम उनको वहां से निकालो जहां से तुम्हें उन्होंने निकाला, यानी हरम में भी और हरम के अलावा हर जगह को मुशरिकों से पाक कर दो। जहां पे भी तुम्हें मुशरिक मिले उनकी गर्दन काट दो। वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, क्योंकि इसकी वजह यह है कि बेदीनी और शिर्क जो है वो कत्ल से ज्यादा सख्त है। जमीन के ऊपर अगर कोई बेदीनी फैला रहा है, शिर्क फैला रहा है, अल्लाह ताला का बागी बना रहा है लोगों को, तो उसके मुकाबले में कत्ल इतना बड़ा गुनाह नहीं है। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी हत्ता युकातिलूकुम फीही, लेकिन मस्जिद हराम के पास उनके साथ लड़ाई ना करना। ये जो आयत है, आयत का ये वाला सॉरी ये पूरी आयत है 191, इसके अंदर जिहाद की इजाजत वाज़ेह तौर पर मिल रही है। पिछली आयत के अंदर जिहाद की भी इजाजत नहीं थी, वहां पे सिर्फ डिफेंस था। यहाँ पे जिहाद की इजाजत मिल रही है, और इसमें अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर फरमा रहे हैं कि मुशरिकों को हर जगह से निकाल दो, और जहां कहीं भी उनको पाओ उनकी गर्दनें उड़ा दो। और वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी हत्ता युकातिलूकुम फीही, लेकिन एक बात याद रखना कि मस्जिद हराम के अंदर उनके साथ लड़ाई ना करना यहाँ तक कि वो तुम्हारे ऊपर हमला करें, क्योंकि हुर्मत की जो जगहें हैं और हुर्मत के जो महीने हैं उनके अंदर
लड़ाई करने की, जंग करने की इजाजत नहीं होती। लेकिन अगर हुर्मत की जगहों पे यानी हरमैन शरीफैन में या हुर्मत के महीनों के अंदर, ज़िकात, जिलहज, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हैं हुर्मत के, इनके अंदर वो तुम्हारे ऊपर हमला कर दें तो तुम फिर उन डिफेंस कर सकते हो, लड़ाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फिर तुम हाथ बांध के बैठे रहो कि हमने लड़ाई नहीं करनी क्योंकि हुर्मत के महीने हैं। इन कातलूकुम फक्तुलूहुम, अगर वो तुम्हारे साथ लड़ाई करें तो तुम भी उनसे लड़ाई करो। कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, क्योंकि यही काफिरों की सजा है। इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, लेकिन अगर वो बेदीनी और शिर्क से बाज आ जाएं तो अल्लाह ताला बख्शने वाले, रहम फरमाने वाले हैं। क्योंकि असल मकसद कत्ल करना नहीं, असल मकसद बेदीनी को खत्म करना है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन, और उनके साथ उस वक्त तक जंग जारी रखो जब तक कि बेदीनी खत्म ना हो जाए। वयकून दीनु लिल्लाह, और यहाँ तक कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की हो जाए। फ़इन इंतहू फला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन, फिर अगर वो शिर्क से बाज आ जाएं तो फिर ज्यादती नहीं करनी। ज्यादती से मुराद यानी कत्लो गारत सिर्फ मुशरिकों का ही करना है। अगर कोई मुसलमान हो जाता है तो वो दायरा इस्लाम में दाखिल होने की वजह से अमन में है। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास, इसी तरह पहले अल्लाह ताला ने जो है जगह की बात की, हुर्मत की जगह की। अब हुर्मत वाले महीनों की बात आई कि ज़िकात, जिलहज, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हुर्मत के हैं। अगर इनके अंदर तुम पहली बात तो ये है कि तुम मुशरिकीन के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ लड़ाई करें तो फिर तुम भी उनके साथ लड़ाई करो। वल हुरुमातु क़िसास, और हुर्मतों का बराबर बराबर बदला लो। अब देखिए कि दीन हमारा कितना पुरअमन है, कितना अमन सिखाता है हमें, लेकिन इतना नहीं सिखाता कि कोई तुम्हारे पे हमला करे तो तुम अपना दिफा भी ना करो और तुम अपना बदला भी ना लो। लेकिन इन आयात को इस तरह से नहीं लेना कि ये हमारी आपस के लिए है, मुसलमानों के लिए। ये कुफार से मुकाबले की अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि काफिरों के मामले में इस तरह तुम्हें सख्त होना चाहिए। फमने तदा अलैकुम फातदू अलैहि बिमिस्ली मा तदा अलैकुम, लेकिन इस मामले में भी क्या है कि जो शख्स तुम पे ज्यादती करे, और जितनी ज्यादती करे उतनी ही ज्यादती तुम उसके साथ करोगे। उससे ज्यादा अगर तुमने उसको मारा या पीटा या जख्मी किया या कत्ल कर दिया जितना तुमने उसको किया, उसने तुम्हें किया था, तो फिर तुम जालिम हो, फिर तुमसे हिसाब लिया जाएगा कि तुमने ज्यादती क्यों की। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और अल्लाह ताला से डरते रहो और यकीन कर लो कि अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। व अनफिकू फी सबीलिल्लाहि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। अब अगला पार्ट, जिहाद करने के लिए जो है माल की भी जरूरत होती है। तो मुसलमानों को तरगीब दी जा रही है कि अल्लाह की राह में अपना माल खर्च किया करो, समेट समेट के ना बैठा करो उसको, अपनी तिजोरियां भर के ना बैठा करो, बल्कि जहाँ पे दीन की सरबुलंदी के लिए काम हो रहा हो, यानी अल्लाह के मुजाहिदीन जो हैं वो जिहाद कर रहे हों, लड़ रहे हों, तो उनकी मदद किया करो अपने मालों के जरिए। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने हाथों को हलाकत में ना डालो। हलाकत में डालने का क्या मतलब है कि अपने मुट्ठियां बंद करके ना रखो, अपने हाथ बंद करके ना रखो कि हमने देना ही नहीं, खर्च ही नहीं करना, बल्कि अहसिनु, नेकी करो, फी सबीलिल्लाहि व अनफिकू फी सबील सॉरी व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, नेकी करो क्योंकि अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, और हज और उम्रा जो है अल्लाह ताला के लिए मुकम्मल करो। मुशरिकीन जो थे वो अपने बुजुर्गों के लिए हज किया करते थे, उन्होंने बैतुल्लाह के अंदर शिरक करना शुरू किया था, बुतों की जो है उनके तवाफ किया करते थे और उनके नाम के हज किया करते थे। इन से तुम फमस्तैसरा मिनल हज, और अगर तुम रोक दिए जाओ उम्रा करने से तो जो भी मुयस्सर आए कुर्बानी, उसको कुर्बान कर दिया करो। इससे मुराद ये है कि दुश्मन की वजह से अगर तुम रोक दिए जाओ, जैसा कि नबी अलैहि इस्लाम को दुश्मन ने रोक दिया, और या बीमारी की वजह से रुक जाओ कि तुम एहराम बांध के निकले और रास्ते में खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी आ पड़ी कि तुम अपना उम्रा नहीं कर सकते, तो फिर उस वक्त क्या करना है, कुर्बानी का जो जानवर तुम्हारे पास है उसको कुर्बान कर दो। वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हज्जु महिल्ला, और अपने सरों को उस वक्त तक ना मंडवाओ, यानी एहराम उस वक्त तक ना खोलो जब तक कुर्बानी जो है अपने ज़बह होने की जगह पे नहीं पहुंच जाती।
यानी मीना के अंदर नहीं पहुंच जाती। ये एक ओवरऑल बात भी है कि मीना में जब तक कुर्बानियां ना पहुंचे, सर ना मुंडवाएं। सर मुंडवाने का मतलब ये है कि एहराम ना खोलें, क्योंकि सर मुंडवा के फौरन एहराम खोल लिया जाता है। तो कुर्बानी अगर बीमारी की वजह से या दुश्मन की वजह से उम्रा करने से रुक गए हो, तो उस वक्त भी तुम अपनी कुर्बानी का जो जानवर है उसको ज़बह कर दो और एहराम खोल दो। और लेकिन एक बात इसके लिए याद रखनी चाहिए कि उम्रतुल कज़ा फिर जरूरी है। अगर आपने इहराम बांध लिया है उम्रा करने के लिए और फिर आप उम्रा नहीं कर पाए और आपने कुर्बानी करके अपना इहराम खोल दिया है, तो फिर आपको जिंदगी में कभी ना कभी उम्रा लाजमी करना है, उसकी कज़ा अदा करनी है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम का पहले साल 6 हिजरी में उम्रा कज़ा हो गया था, आप नहीं कर पाए थे, तो फिर अगले साल आपने उसको उम्रतुल कज़ा की नीयत से किया था। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिही, यानी कुर्बानी जब अपनी कुर्बान होने की जगह पे पहुंच जाए तो फिर तुम अपने इहराम खोल सकते हो और सर मुंडवा सकते हो। लेकिन जिस शख्स को सर के अंदर कोई बीमारी हो या वो बीमार हो कि सर मुंडवाने से उसको उसकी बीमारी के बढ़ने का खतरा हो, तो फिर उसके लिए फिदिया क्या है? फफिदिया तुम मिन सियामिन, रोजे जो हैं उसका फिदिया है। औ सदकतिन, या 6 मिस्कीनों को 2-2 सेर गंदम देनी है। औ नुसुकिन, यानी या कुर्बानी करनी है, एक कुर्बानी कर दे, एक जानवर कुर्बान कर दे, या 6 मिस्कीनों को 2-2 वक्त की सॉरी 2-2 सेर गंदम दे दे, या 2 टाइम का खाना खिला दे। फ़इज़ा अमीन तुम, फिर जब तुम अमन में हो, ये सब कुर्बानियां करने के बाद भी जब तुम अमन में हो तो इसका यानी सॉरी ये सारे जो फिदिये हैं ये घर आने के बाद हैं, यानी बीमारी खत्म हो जाए और या दुश्मन से जो तुम्हारा सामना था वो मामला टल जाए, तो उसके बाद तुम इन सूरतों में अपना उम्रा की जो सॉरी सर ना मुंडवाने का जो फिदिया है वो तुम अदा कर सकते हो। फमन तमत्ता बिल उम्रती इलल हज फमस्तैसरा मिनल हज, और जो हज तमत्तो करे यानी हज और उम्रा इकट्ठा करे तो उसके लिए शुक्राने के तौर पर कुर्बानी करे। फमल्लम यजिद फसियाम सलासती अय्याम, लेकिन जो शख्स कुर्बानी की ताकत ना रखे तो उसको 10 रोजे रखने हैं। सलासती अय्यामिन फिल हज्जी, 3 रोजे हज के दौरान, व सबअतिन इज़ा रजातुम, और 7 रोजे जब घर वापस लौट आए तो उस वक्त रखने हैं। तिलका अशरतुन कामिला, ये 10 रोजे जो हैं मुकम्मल हुए। ज़ालिका, उस शख्स के लिए हैं जो कुर्बानी के लिए कुर्बानी की ताकत ना रखता हो हज के दौरान। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाजिरिल